அன்புக்குரிய கோலார் தங்கவேல் பொதுமக்கள் அனைவருக்கும் இந்த மாலை நேரத்தில் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த ஹசரத் சையதனா கௌஷா அலி பாபா அத்தாய கலந்தரி காதரி ரஹமத்துல்லாஹி அலை தர்கா ஷரீஃப். இங்கே வருபவர்கள் ஜாதி மதம் எதுவும் கிடையாது. அனைவரும் ஒன்றுபட்டு இங்கே வருகிறார்கள். அவர்களுடைய எந்த வகையிலும் எந்த ஆபத்து எந்த வேதனை இருந்தாலும் இங்கு தீர்த்து கொண்டு அனைவரும் இங்கு ஷிஃபா எட்டு சொல்லுகிறார்கள். இது ரொம்ப முக்கியமான இடம். இங்கே வருபவர்கள் யார் வருகிறார்கள் யார் போகிறார்கள் என்று கணக்கே கிடையாது. அனைவரும் மிக நேர்மையான முறையில் மிக பக்தியோடு வருகிறார்கள், பக்தியோடு வந்து செல்லுகிறார்கள். இவர்கள் பக்தியோடு வந்து பக்தியோடு செல்லுகின்றார்கள். அனைவரும் இந்த இடத்திலிருந்த வெறுங்கையோடு செல்வது கிடையாது. அனைவரும் இந்த இடத்துக்கு எந்த எண்ணத்தோடு வருகிறார்களோ அந்த எண்ணத்தை பயன்படுத்தி கொண்டு தான் செல்லுகிறார்கள். வேறு என்ன என்றால், நாளை வியாழக்கிழமை கௌஷா அலி பாபா தர்காவில் யார்வி ஷரீஃப் ஃபாத்தியா கானி இருக்கிறது. இங்கே மாலை 8 மணியிலிருந்து அன்னதானம் வழங்கப்படும். அனைவரும் வந்து இந்த ஃபாத்தியா கானியில் கலந்து கொண்டு அன்னதானத்திலிருந்து அனைவரும் சந்தோஷமாக செல்லும்படி அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். இங்கேனும் தர்கா கமிட்டி. या मोहम्मद करम कीजिए, या मोहम्मद करम कीजिए, दूर हम सबका गम कीजिए, दूर हम सबका गम कीजिए, या मोहम्मद करम कीजिए, या मोहम्मद करम कीजिए। देता हूँ वास्ता मैं तुम्हारी ही आल का, सदका अता हो फातिमा ज़हरा के लाल का। आज अपनी इल्तिजा का भरम चाहता हूँ मैं, आज अपनी इल्तिजा का भरम चाहता हूँ मैं, बस आपकी निगाह करम चाहता हूँ मैं। या मोहम्मद करम कीजिए, या मोहम्मद करम कीजिए, या मोहम्मद करम कीजिए। रहमते खुदा हो, खुदा के रसूल हो, प्यारे नबी ये अर्ज हमारी कबूल हो। दौलत की है तलब न तमन्नाए माल है, दौलत की है तलब न तमन्नाए माल है, हर उम्मती के लब पे यही एक सवाल है। या मोहम्मद करम कीजिए, या मोहम्मद करम कीजिए, या मोहम्मद करम कीजिए।
மாலை நேரத்தில் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த ஹதரத் சையதனா கௌஷா அலி பாபா அத்தாய் கலந்தரி காதரி ரஹமத்துல்லாஹி அலை தர்கா ஷரீஃப். இங்கே வருபவர்கள் ஜாதி மதம் எதுவும் கிடையாது. அனைவரும் ஒன்றுபட்டு இங்கே வருகிறார்கள். அவர்களுடைய எந்த வகையிலும் எந்த ஆபத்து எந்த வேதனை இருந்தாலும் இங்கு தீர்த்து கொண்டு அனைவரும் இங்கு ஷிஃபா எட்டு செல்லுகிறார்கள். இது ரொம்ப முக்கியமான இடம். இங்கே வருபவர்கள் யார் வருகிறார்கள் யார் போகிறார்கள் என்று கணக்கே கிடையாது. அனைவரும் மிக நேர்மையான முறையில் மிக பக்தியோடு வருகிறார்கள், பக்தியோடு வந்து செல்லுகிறார்கள். இவர்கள் பக்தியோடு வந்து பக்தியோடு செல்லுகின்றவர்கள் அனைவரும் இந்த இடத்திலிருந்த வெறுங்கையோடு செல்வது கிடையாது. அனைவரும் இந்த இடத்துக்கு எந்த எண்ணத்தோடு வருகிறார்களோ அந்த எண்ணத்தை பயன்படுத்தி கொண்டு தான் செல்லுகிறார்கள். வேறு என்ன என்றால், நாளை வியாழக்கிழமை கௌஷா அலி பாபா தர்காவில் 11वीं ஷரீஃப் ஃபாத்தியா கானி இருக்கிறது. இங்கே மாலை 8 மணியிலிருந்து அன்னதானம் வழங்கப்படும். அனைவரும் வந்து இந்த ஃபாத்தியா கானியில் கலந்து கொண்டு அன்னதானத்திலிருந்து அனைவரும் संतोषமாக செல்லும்படி மிக அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். இங்கனம் दरगाह से एक इतला दी जाती है। यहाँ पर सैयद हजरत गौशा अली बाबा के दरबार से बात कर रहे हैं। हर साल 11वीं शरीफ गौसे पाक के नाम से 11वीं शरीफ मनाई जाती है, क्योंकि हर अवाम को मालूम होना हमारे कोलार डिस्ट्रिक्ट के हिंदू हो या मुसलमान हो सिक्की हो सबको भी ये हमें ज़ियाफ़त शरीफ करते हैं। ये हर साल अच्छे से अच्छा हमारा 11वीं शरीफ का प्रोग्राम फातिहा की खानी चलती है। हर प्रोग्राम हर साल अच्छा होता है। इसीलिए हमारे तमाम मुसलमानों को भी बोलता हूँ, हिंदू मुस्लिम सब सिख ईसाई सबको भी ये ज़ियाफ़त आम है। ये केजफ में हमारे सैयद गौशा अली बीरने कपम कैशम्बल्ला हुबली को ये जमती से दरगाह शरीफ हमारी 100 साल अबो की दरगाह शरीफ है। यहाँ पर हर ज़ात आती है, हिंदू मुस्लिम सिक्की ईसाई हर ज़ात आकर मन्नत अल्लाह रसूल के बाद हमारे औलिया अकरम की दुआ लेके जा रहे हैं। इसीलिए हमारे कमेटी के पूरे अंग से दरख्वास्त भी कर रहे हैं, क्योंकि ज़ियाफ़त के लिए आम ज़ियाफ़त के लिए दावत दे रहे हैं। मेहरबानी फरमा कर कल शिरकत फरमाए। कल जुमेरात के दिन ईशान के बाद 19 तारीख को ज़ियाफ़त आम होएगी। 9 तारीख को माफ़ करना 9 तारीख के दिन ज़ियाफ़त आम ज़ियाफ़त हो रही है यहाँ पर दरगाह शरीफ में। आप सब मिलकर आकर फातिहा खानी खा लेकर जाइए मेहरबानी फरमा कर। अब अभी हमारे दरगाह के बहुत पुराने आदमी हैं, यहाँ के खादिम हैं, बात करेंगे यहाँ की हिस्ट्री क्या है। तमाम भाई बहनों से नौजवानों से बच्चों से गुजारिश है, बिन कपम के क़रीब में गौशा अली की सैयद गौशा अली रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना है। बहुत आलीशान पैमाने पे मनाया गया है। तमाम कमेटी ने तब मिलकर मेहनत करके इतनी दूर ला के लाए हैं, बहुत तरक्की किए हैं। अल्लाह उनको खैर फरमाए और आने वालों के ऊपर भी बाबा गौशा अली का फैज़ अता फरमाए। बाबा की ऐसी शान है, यानी कि बाबा की तारीफ़ जितना करो उतनी कम है सैयद गौशा अली की। लेकिन हर एक को भी यहाँ फैज़ अता होता है। हर एक बीमार, हर एक असरात जादू मुसीबत बला वाला जो भी आता है यहाँ फैज़ पाकर जाता है। यहाँ से कोई खाली नहीं जाता है। ये शान है सैयद गौशा अली की। गौशा अली के पास ऐसे ऐसे केसा आए हैं, ऐसे ऐसे तकलीफ़ वाले आए हैं, सब यहाँ से दवा पाकर जाए हैं। लेकिन जिस्मानी हो या रूहानी हो, सब के वास्ते भी बाबा गौशा अली की दुआ होती है। अल्लाह ताला ने उनके सदक़े में सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। बाबा की एक शान ऐसी है, सबसे पहले दरबार ईजाद होने के वक्त में बाबा गौशा अली के पास एक सेठ मारवाड़ी सेठ थे, उनके पेट में तकलीफ़ थी। वो यहाँ पर एक मजबूरी से ज़िंदगी से दूर होकर बेजारगी से नाराज़गी से एक जंगल बेबान था। उसके उस वक्त में कोई यहाँ कुछ भी नहीं था, ना घर ना लाइट ना एक पानी का
बसेरा कुछ भी नहीं था यहाँ पर। ऐसे हाल में मजबूरी में मरने की हालत में वो आए थे यहाँ। उस वास्ते में बाबा गौशावली ने रात में उनको ऐसा इशारा दिए, आके उठ के आ करके बोले, उठ को आ करके बोलने से वो परेशान होके उठा, उठ के किधर जाना करके उसको समझ में नहीं आया। बाद उसको इशारा दिए, ये जगह बता के आके खड़ा। वहीं पे खड़ने के बाद उसको देखा तो जब भी उसको समझ में नहीं आया, बाद उसको गैब से एक पत्थर पड़ा। जब समझ में आया कि यही जगह है, उसको बोले बाबा गौशावली इशारा दिए, ये मट्ठी खा ले तू। ये मिट्टी खाने के बाद वो जब फ़ौरन अल्लाह उसको सेहत दे दिया गौशावली के सदक़े में। वो कामयाब हो गया, खुशहाल हो गया, अपने घर गया। अपने घर जाने के बाद सबसे यहाँ की कैफियत सुनाया। उन लोगों को सुनाने के बाद खुशहाल होके आके जब से ये आस्ताना वो मारवाड़ी सेट आगाज़ किया, इसके बाद सारे शहर में इनका चर्चा हुआ। इसके बाद दिने दिन यहाँ आबादी होते गई, लोग आने बढ़ते गए। उसके बाद कितने की कमेटी वाले आए गए, उन्होंने भी मेहनत किए और दूसरे भी आए, जितने भी मेहनत करते गए, उनके हाथ से, उनके दिमाग, उनकी मेहनत से जो भी यहाँ बढ़ते गया। अब ये जो कमेटी है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाबी की है, बहुत मेहनत से आलिशान दरबार हुआ है। यहाँ लंगर खाना भी एक बहुत बड़ा बनाया गया है। इधर दुकानों की एक तामीर की गई है। पंजतन पाक का एक आस्ताना भी बनाया गया है। इधर आके मस्जिद भी बनाए हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के नाम से हज़रत अली मस्जिद बनाया गया है। और बहुत आलिशान एक मदरसा भी GM मनवर साहब एक यहाँ पर उनकी माँ के नाम से एक बहुत बेहतरीन मदरसा बनाए गए हैं और उसमें बच्चे तालीम पाएंगे और जितने क़यामत तक भी ये मदरसा चलेगा, इसका सवाब और उनकी माँ को, उनके बाप को, उनके मरहूम जितने भी हैं उनको इसका अज़र दे। अल्लाह उनको कामयाबी अता फरमाए। और यहाँ पर मदरसा भी तामीर है, पंजतन पाक का आस्ताना भी तामीर है, गौसे पाक का निशान है, ख्वाजा गरीब नवाज का निशान है। यहाँ पर सैयद गौशावली का आस्ताना बहुत आलिशान पैमाने पर है और यहाँ जो भी आता है खाली नहीं जाता है, फैज़ पाता है। ऐसी करामतें हैं बाबा के। एक दिन का वाक़या ऐसा हुआ, एक खेड़े के पास एक औरत पूरी हॉस्पिटल फिर गई थी, उसके पास ना बोलने की ताकत थी, ना चलने की ताकत थी। ऐसी हाल में आई थी वो। उस टेम्पो में यहाँ पर ड्यूटी में था। वो आने के बाद अचानक से फजर की नमाज के बाद वो आ गई। आने के बाद मेरे को इशारा हुआ इसको दूर करो करके। मैं उसको दूर करने गया करके बोला तो भी वो जल्दी नहीं गई। बाद में उसको डांट के बोला तू जा जल्दी इधर से करके बोल के, वो जाते ही गेट उंगली वो फ़ौरन उसको डिलीवरी हो गई। होने के बाद उससे कोई औरतें आके जम के उसकी क्या ज़रूरत है वो पूरी करके बच्चा मर के पैदा हुआ। लेकिन बच्चा नहीं होता, ये औरत नहीं जीती, ये लेके चले जाओ उससे कर को। ऐसी हालत में डॉक्टरों भेज दिए थे, यहाँ पर बैलगाड़ी में लेके आए थे उस वक़्त पर। ऐसी शान गौशावली बाबा की है। फ़ौरन उसको इलाज किए, उसकी डिलीवरी किए, बाद उसको सेहत अता फरमा के उसके घर उसको रवाना कर दिए। अभी इसकी बाबा गौशावली की करामतें बहुत हैं। एक लड़का यहाँ पर आया था, उसके सीने में दर्द है। डॉक्टर बहुत से बोले उसको छाते में दर्द है, उसके सीने में सुराख है करके बोल के दिल में। ऐसी हालत में वो भी ज़रा दिन रहा। उसके बाद वो भी यहाँ फैज़ पाया, बाबा का करम हुआ, बाबा का करम हुआ। अस्सलाम वालेकुम। सब जो भी हमें बोले, अगर बोलने में कुछ गलती ख़ता हुई तो कमेटी वाले भी नाराज़ नहीं होना है और आप लोग भी नाराज़ नहीं हैं। अल्लाह और रसूल के सदक़े में गौशावली बाबा कुछ हमें बोलने करने में इनकी शान कुछ गलती हो गई है तो मेरे गौशावली बाबा भी हम सबको माफ़ फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।